Good morning, students. As you all know that we were on the chapter 4th. Chapter 4th हमने शुरू कर रखा था जिसका नाम है The Enemy. We were talking about the chapter The Enemy. We were discussing about Dr. Sadao, उनकी wife Hana, that they were standing one day or one night when both of them they were standing in the veranda and they were enjoying the view of the sea from their veranda, when at that time only they saw that a human figure is coming out from the sea. Initially in the beginning they thought that it might be some sailor जो कि बहकर वहां तक आ गया है, बट लेटर ऑन दे कम टू नो दैट ही वाज अ वॉर prisoner of America. The person belongs to America, and our story was being set up in the atmosphere of World War I, where Japan and USA were enemies. So here Dr. Sadao and Hana, they both were in dalmia, in a confusing state that being a patriotic citizen, should they hand over this person to police, or being a doctor, Dr. Sadao must treat him well, because वो जो टॉम हमारा प्रिजनर है जिसको पकड़ा था उन्होंने, मिला था जो उनको, उसको बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है एक ऑपरेशन की. सो दे बोथ वर इन स्टेट ऑफ डालमिया, बट इन द एंड हम देखते हैं दैट डॉक्टर सडाओ and Hana, they finally decided to take him home, to take that man home, as he was in need of urgent medical attention. तो उसका जो moral conscious है वो जीत जाता है. अब afterwards what we see, हम क्या देखते हैं इसके बाद? हम देखते हैं that the servants who were working for Dr. Sadao, they reacted very bitterly. They decided that they should tell the servants also that after treating this prisoner of war, they will be handing him over to the police or to the army. They would tell them that they intended to hand him over to the police, but the man had been starved for a long time and he was light as a foal. They carried him to Sadao's father's bedroom, as his father was no longer alive. The old man had never allowed a foreign object in his room. When they take that prisoner to Dr. Sadao's father's room, so already we have discussed this, that Dr. Sadao's father was a man of principle and he was a pure Japanese by blood. अगर वो होते उस वक्त तो वो कभी भी एक एनिमी को अपने घर में नहीं आने देते, बट एज ही इज नो मोर अलाइव, तो डॉक्टर सडाओ उनको नीचे उनके रूम में लेके आते हैं. हाना वाज नॉट एट ऑल वेरी हैप्पी बिकॉज शी वाज एबल टू सी दैट उसका जो इम्पोर्टेड कारपेट है, वाइट क्विल्ट है, दे ऑल आर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्लड ऑफ दैट अमेरिकन सोल्जर. तो उसकी चीज़ें खराब हो रही हैं, तो शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी, बट विद दिस शी वॉज नॉट इवन एबल टू से समथिंग टू डॉक्टर सडाओ. उनको, क्योंकि जो हाना है वो ये जानती थी कि डॉक्टर सडाओ के लिए उनका प्रोफेशन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो उनको लगा कि इस मतलब अच्छा नहीं लगने के बावजूद भी वो ऐसा करने दिया उनको. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बोथ ऑफ देम दे कैरिड हिम टू देयर बिकॉज नन ऑफ द सर्वेंट वाज रेडी टू help him out. Now to clean up his wounds and to start further procedure, they need hot water and assistance of somebody. Now the American was very dirty and needed to be washed. Hana जो है she told Yumi, जो कि उनकी सर्वेंट थी, गवर्नेंस थी वो एक्चुअली उनके बच्चों की. सो उसने, हाना ने उनको बोला टू क्लीन हर. She went to fetch water. When she returned to the kitchen, she found that other two servants were frightened at what Dr. Sadao had told them. The servants tried to convince Sadao that he must
hand over the enemy to the police. Yumi refused to wash the American soldier and Yana had to wash him himself. अब क्या होता है, while when the American soldier was being brought home, तो they told their servants that after doing the first aid, what वो लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ठीक करके they will be handling him over to the पुलिस और टू द आर्मी. लेकिन तो जो सर्वेंट्स हैं दे रिफ्यूज्ड, वो उसको भी बोलते हैं दैट दे मस्ट नॉट डू इट और उसको तुरंत ही हैंड ओवर कर दिया जाए. यूमी जो होती है उनकी सर्वेंट, वो क्लियरली डिनाई कर देती है कि भाई मैं तो इसको साफ नहीं करूँगी. अब बीइंग अ पैट्रियोटिक सिटीजन ये डिसीजन वो लोग लेते हैं. अब डॉक्टर सडाओ बीइंग अ डॉक्टर वांटेड टू save the enemy's life, though he know that this American soldier is enemy, फिर भी वो उसकी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं. वो चाहते हैं उसकी लाइफ को सेव कर लिया जाए. डॉक्टर सडाओ वॉज रेडी टू ऑपरेट. उनको when after observing the him minutely, उनको समझ में आता है that this patient needs an urgent operation. So he was completely absorbed in his work. Now he told Hannah that she would need to give anesthesia to that man. अब जब सारे सर्वेंट्स जो है वो डिनाई कर देते हैं हेल्प आउट करने के लिए, तो हाना है वो जाकर खुद ही उसकी बॉडी को, जितने भी वोल्ड उसकी बॉडी पे होते हैं, शी स्टार्टेड क्लीनिंग देम ऑल. एंड इवन दो शी वोमिटेड, शी फेल्ट बैड, बट एनी हाउ शी वॉज देयर. She wanted to tell her husband that she is there. तो अब डॉक्टर सडाओ को समझ में आ जाता है that इसका जो है वो ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा. Now हाना जो है probably had never seen an operation and started vomiting. Sadao was irritable and impatient with his enemy as he was not able to help Hana in her distress. The man groaned with pain. The man हमारा यहाँ टॉम जो है. अब फॉर डॉक्टर सडाओ दिस इज अ वेरी यूजुअल थिंग. वो पता नहीं दिन में कितने ऑपरेशन करते हैं, लेकिन फॉर हाना दिस थिंग्स आर नॉट न्यू. शी इज नॉट हैबिचुअल ऑफ ऑल दीज थिंग्स. उसको आदत नहीं है सब देखने की. तो जब वो देखती है डॉक्टर सडाओ कट कर रहे हैं, उसको निकाल रहे हुए, तो वो उसको वॉमिटिंग हो जाती है. कहीं ना कहीं डॉक्टर सडाओ एक तरफ तो अपने पेशेंट को बचाने में लगे हुए हैं, ऑन द अदर हैंड बीइंग अ हस्बैंड को लगता है कि मुझे जो है इस वक्त हाना के पास होना चाहिए था. वो बहुत प्रॉब्लमेटिक फेज से गुजर रही है, उसने कभी देखा नहीं. और मीनवाइल हम क्या देखते हैं, हम वो जो पेशेंट है एनेस्थीसिया देने को बोलते हैं जब उसको, तो हाना को अच्छा नहीं लगता, उसको पता ही नहीं, खैर वो दे देती है. और एनेस्थीसिया देने के बावजूद, मतलब बेहोश किए जाने के बावजूद भी जो हमारा सोल्जर है टॉम, वो क्या है, वो दर्द में करा रहा होता है. तो विद दिस वी कैन इमेजिन कि कितना ज़्यादा पेन, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में वो उस वक्त है ना. इंटरेस्टिंगली इनफ हाना वॉज एबल टू असिस्ट हर हस्बैंड इन द ऑपरेशन, जो कि पहले उसने कभी नहीं किया है. हाना ऑल्सो नोटिस्ड डीप रेड स्कार ऑन द नेक ऑफ हिज एनिमी. गर्दन पर उसको लाल लाल बहुत निशान दिखाई देते हैं. शी वॉन्डर्ड if the war tortures story had heard were actually true. अब जब वो देखते हैं उसके बॉडी को क्लोजली, तो वो देखते बहुत निशान होते हैं मारने पीटने के. अब then she realizes that the stories which they used to listen, कि जो वॉर प्रिजनर्स होते हैं उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है, ये सारी जो बातें वो सुनती थी वो शायद सही थी. उसको देखने के बाद उसको इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन जो है वो होता है. उसको समझ में आता है that all the stories which she had heard were actually true. Now she realized that General Takema जो है was a ruthless man who did not even spare his wife. अब उसका ध्यान एकदम से सोच के कहाँ चला जाता है, जर्नल के ऊपर चला जाता है जिसका नाम टाकेमा है. उसको पता है कि जो जनरल टाकेमा है ही इज़ नॉट एट ऑल अ गुड पर्सन, इवन ही ह्यूमिलेट्स हिज वाइफ. उसको मारता है, पीटता है. ये सारी बातों में उसका ध्यान चला जाता है. अब डॉक्टर सडाओ जो हैं ही मर्मर व्हाइल ऑपरेटिंग, जो कि उनका रोज का काम है, मतलब उनकी आदत है
talking to the patients while operating them, though he know that patient is not able to listen anything. ये आदत बन गई उसकी. Now the man, the enemy, जिनको कि वो ऑपरेट कर रहे हैं, was crying in pain. और कहीं ना कहीं डॉक्टर सडाव को बीइंग अ डॉक्टर ये रियलाइजेशन हो रहा है कि इसको इस तकलीफ से मुझे निकालना है. सो फाइनली जो ऑपरेशन है वो कर देते हैं. ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल वन. लेकिन वो हाना को भी बोलते हैं टू टेक रेस्ट एंड ऑल. अब क्या होता है कि द डिफिकल्ट फेज हैज स्टार्टेड फॉर हाना. जितने भी सर्वेंट्स हैं घर के, वो क्या देखती है, अगले दिन वो सब अपनी पोटली वोटली कपड़ों की बांध के तैयार है. दे वांटेड टू लीव. अच्छा, उनमें से जो उनका गार्डनर है, उन्हें वो इतने पुराने हैं कि उन्होंने डॉक्टर सडाव को बचपन में देखा है. सो दे आर वेरी मच अटैच टू द फैमिली. उनको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे हैं. लेकिन इस वक्त हाना के मन में हम देखते हैं एक ईगो आ जाता है कि मैं मालिक हूँ, तो वाई शुड आई गो बिहाइंड देम. इनको मेरी बात सुननी चाहिए. जब हम बोल रहे हैं तो वो किसी को रोकती भी नहीं है. और वो देखती है, अब वो जब बोलती है आप जाना चाहते हो तो चले जाओ. बच्चों के कमरे में जाती है और जब वो वापस आती है तो वो क्या देखती है कि ऑल हैव गॉन, सब चले गए. अब ऑल द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर ऑन हाना. वो बेचारी अकेली सब कुछ कर रही है. ऑन द अदर हैंड वो जो हमारा टॉम है प्रिजनर, वो भी वहाँ पर है. तो जब उस प्रिजनर को होश आता है तो क्या देखते हैं, ही वॉज वेरी मच सरप्राइज. द मैन वॉज वेरी मच सरप्राइज टू सी दैट हाना कैन एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. तो उसके बाद हाना जो है, हाना टोल्ड हिम दैट शी लिव्ड इन अमेरिका फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज व्हाई शी नोज इंग्लिश वेरी वेल. नाउ द एनिमी वॉज रिलीव्ड आफ्टर टॉकिंग टू हाना. अच्छा लगता है उसको. अब उसी वक्त वो हम बताता है हाना को कि उसका नाम जो है वो टॉम है. नाउ सडाव वॉज कन्फ्यूज्ड अबाउट हैंडलिंग हिम ओवर टू पुलिस, या आगे इसका ट्रीटमेंट करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर उसकी जान बचाना उसका फर्ज था, वो बचा चुका है. लेकिन कहीं ना कहीं अपने पेशेंट को बचाने का जो लालच है वो हम देखते हैं डॉक्टर सडाव में एंड तक रहता है. अब सर्वेंट्स चले गए हैं. सो लाइक क्या द सर्वेंट्स जो हैं दे रेजिस्टेड देयर डिसीजन टू हेल्प द अमेरिकन सोल्जर. अब हाना टोल्ड सडाव दैट द सर्वेंट्स वुड not able to live in the house if the enemy is still present. वो मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है. सडाव इवन ट्राई टू क्लेरिफाई दैट अमेरिकन्स जो हैं वो जानता है कि इस वक्त युद्ध हो रहा है अमेरिका से और उनके दुश्मन हैं, बट बेसिकली अमेरिकन्स जो है, सारे अमेरिकन्स उनके दुश्मन नहीं हैं. और वो और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर सडाव उनको क्लियर करना चाहता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है. सो all the servants left and the tough fight of livelihood started for Hana. अब एक डर और है इन दोनों के मन में. वो क्या है, that अगर किसी को पता चल गया that one American soldier is there in their house, तो क्या होगा. और एक छोटी सी भी, क्योंकि डॉक्टर सडाव तो खुद आर्मी में है, तो किसी न किसी आर्मी ऑफिसर का आना जाना, पुलिस का नहीं, ये बहुत कॉमन सी चीज़ थी उनके लिए. पहले कॉमन थी लेकिन अभी दे आर नॉट कॉमन, क्योंकि अभी हर वक्त उनके मन में डर है कि क्योंकि सर्वेंट्स को तो पता था, तो कहीं सर्वेंट्स जाके ना किसी को बता दे, उसके थ्रू पता चल जाए. तो एक कन्फ्यूजन था कि अगर पता चल गया तो उनकी जो लाइफ है वो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकती है. नाउ अब देयर लाइफ वॉज गोइंग ऑन लाइक दैट ओनली. तो हम देखते हैं ऑन द सेम डे व्हेन सर्वेंट्स हैव लेफ्ट, a messenger in a official uniform come to Dr. Sadav's house. अब हाना was so scared that she was even unable to speak. उसको लगा पता चल गया, सर्वेंट्स ने जाके सब बता दिया और ये लोग जो है हमें अरेस्ट करने के लिए आए हैं. She thought that he was there to arrest Sadav, but in fact the messenger had come to inform Sadav that journal wanted to meet him. Journal needed him. ये बताने के लिए आया था. Now looking at Hana that she is in utter pressure, Dr. Sadav decided to get rid of this man. अब कई दिन हो गए होते हैं उस वॉर प्रिजनर को, 2-3 दिन हो गए होते हैं रहते हुए. और द डे when messenger came there, and Dr. Sadav saw Hana so in a scaring position, तो डॉक्टर सडाव डिसाइड कर लेते हैं कि अब भैया इससे मुझे बहुत जल्दी जो है मैं पीछा छुड़ा दूंगा.
द जनरल जो है देन, अब वो जाके जनरल को सारी बात बता देते हैं। अब जनरल की मजबूरी क्या है कि वो डॉक्टर सडाओ के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते या ले सकते नहीं, क्योंकि उनकी सर्जरी डॉक्टर सडाओ के अलावा कोई और कर नहीं सकता, लेकिन वो सब बता देते हैं उसको। तो जनरल देन प्लान टू गेट द अमेरिकन सोल्जर असैसिनेटेड विद इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सडाओ। तो अब क्या होता है कि the general promises Dr. Sadao that nothing will happen to you. We will only say that some American soldier, he walked inside your house, you informed us, and soldiers were being sent to kill him. So this is how you will get rid of that person, of that American soldier. The general then planned, सारी चीज़ें वो प्लान कर देता है दैट टुडे इन नाइट यू हैव टू लीव द लाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर रूम ओपन, जहाँ पर वो सोल्जर है, और जो है वो सीधा हमारे सोल्जर्स वहीं आके उसको मार देंगे। सो और ये भी बताता है कि वो डॉक्टर जनरल ये भी उनको बताता है दैट ही विल बी सेंडिंग, ही टोल्ड सडाओ दैट हिज पर्सनल जो असिस्टेंट है दे विल बी ओनली, they are very competent and they will also remove the dead body. So Dr. Sadao thought that this plan would be best for the family. After this meeting, Sadao spent 3 restless nights waiting for the SMS. 3 रात तक इंतज़ार करता है उसकी लाइट ऑन करके कि शायद आज भी वो लोग नहीं आती हैं। अब यहाँ से फिर उसके दिमाग में जो कन्फ्यूजन है वो शुरू होता है, बट एज जो जिनको उसको मारना है वो आए नहीं। फाइनली द टॉर्चर बिकम टू मच टू बेयर फॉर हिम, सो ही प्लान टू गेट रिड ऑफ एनिमी हिमसेल्फ। अब उसको लगता है कि यार ये बार बार ये चीज़ हुई जा रही है, कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपने आप ही इससे किसी तरह से छुटकारा पाऊंगा। अब यहाँ पर छुटकारा पाने का प्लान जो डॉक्टर सडाओ ने बनाया दैट इज़ वेरी डिफरेंट। सडाओ एक्चुअली हेल्प्स द एनिमी। Sadao told the escape plan to Tom. He also wanted that he needed to escape as the news of his presence is not hidden anymore. वो खुद भी जाना चाहता था बिकॉज डॉक्टर सडाओ जो है उन्होंने उसको बता दिया था कि ये मतलब जो पहले सारा प्लानिंग हुई थी उसने बता दी थी, और वो वहाँ से जाना चाहता था, वो अमेरिकन भी वहाँ से जाना चाहता था बिकॉज ही वॉज ऑल्सो लिविंग अंडर प्रेशर। उसको खुद पता नहीं था कि अब वो बचेगा या उसको कर देंगे कहाँ हवाले, क्या होगा क्या नहीं। अब द प्लान जो कि डॉक्टर सडाओ ने बनाया वो क्या था, उस डॉक्टर सडाओ ही अरेंज्ड बूट गम बूट्स, एक बोट और फूड, ड्रिंकिंग वाटर, अ टॉर्च और जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें 10-15 दिन तक चल जाएं। ही अरेंज ऑल द थिंग्स फॉर द यंग मैन एंड he told this to young man। ये सारी बातें जो हैं वो उसको बता भी देता है कि इस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अरेंज कर दी हैं। अब he also gave him a flashlight, उसको एक बड़ी flashlight देता है and he told Tom that he should flash the light 2 times if he needed something, once if everything is fine। 2 इशारा देना है उसे, एक इशारा देना है उसे कि एवरीथिंग इज फाइन। अब वो जाएगा कहाँ, थोड़ी सी दूरी पर एक आइलैंड था जो कि एक अमेरिकन आइलैंड है। अगर वो वहाँ तक पहुँच जाता है तो हो सकता है कि जो वॉरशिप्स है वो वहाँ रुकते हैं, तो जो कि महीने में कभी 1-8 बार वहाँ आते हैं, तो अगर बच गया ये तब तक तो ही दे विल रेस्क्यू हिम, और अदरवाइज वो वहाँ पे मर जाएगा। तो वो उसको सारी चीज़ें समझा के वहाँ भेजता है। अब कब करे वो इशारा ये भी बता देता है कि रात को, व्हेन सन ड्रॉप आफ्टर ही कुड, क्योंकि वो जो लाइट है फ्लैश लाइट है वो तभी दिखेगी सन छुप जाएगा जब, उसके बाद ही उसको एक करना है। ही फर्दर एडेड दैट टॉम कुड ईट फिश बट ही शुड ईट रॉ अनलेस ही माइट बी सीन। देखो तुम फिश खाते हो लेकिन वहाँ तुमको रॉ फिश खानी पड़ेगी। इवन हाना डिड नॉट नो अबाउट दिस प्लान। ही हैड टोल्ड टॉम टू वेट फॉर अ कोरियन शिप और अमेरिकन शिप। वो बता देता है या तो तुम वहाँ से कोई कोरियन शिप या अमेरिकन शिप जाएगा, अमेरिका के तो तुम हो ही, कोरिया तुम्हारा फ्रेंड है, फिर तुम रेस्क्यू कर जाओगे, क्योंकि अगर तुमने वहाँ पर फिश विश जो ये सब कुक वगैरह करे तो हो सकता है तुम पकड़े जाओ, क्योंकि वहाँ पे जापानीज शिप्स भी घूमते हैं।
So Sadao went to the journal and informed him that the American has escaped. तो बता देता है कि भैया जो अमेरिकन सोल्जर है, आपको मैंने 4 दिन से बता रखा तो भाग गया है. The journal informed Sadao that he forget about the prisoner as he was unwell. He told Sadao not to leak out this information to anybody. तो ये बात जो है वो आई गई हो जाएगी. But at home, Sadao remembered his days in America and Americans he meets there. He wondered why he could not kill Tom, his enemy. हालांकि उसको सब भूल जाने को बोलते हैं वो, लेकिन वो नहीं भूल पाता है क्योंकि he has spent a very beautiful time with American people when he was doing his medical from there. तो बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्पेंड किया था उसने अमेरिकन्स के साथ में. तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं डॉक्टर सडाओ के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है अमेरिकन्स के लिए. दैट इज वाई ओनली ही वॉज नॉट एबल टू किल दैट वॉर prisoner.